Dear students, till now we have done the feedback in amplifiers. Now, today's our topic is feedback in oscillators. As we have done in the last lecture, that whenever there are oscillations produced through the tank circuit, then those oscillations are basically damped oscillations or they decay with time. And if we want that these oscillations are undamped oscillations, so there are two ways. Either we have to fed back some of the output signal into the input signal in phase, or positive feedback should be there, and the amount of positive feedback is such that it should overcome all the losses which are there due to any resistance or any other losses in the tank circuit. Secondly, I have told you a negative resistance should be applied in case of oscillators if we want to overcome the damping in case of oscillators or in case of tank circuit. So today we will do that how feedback will help the oscillators to produce undamped oscillations. We and we know that the feedback it must be a positive feedback. So let us see this diagram. From this diagram we know it is an amplifier with whose gain is A. It means whatever we will give any input, we will get output by multiplying that input by A times. This second block, it is feedback circuit, feedback terminal, and we have seen in the last unit that oscillators are the devices which give us the output without any input. It means all the input will be getting from this feedback part, or whatever the signal will be taken from output and fed back to input, that will act as the input and we get again output. This is the basic definition of oscillators. Let us suppose A be the voltage gain and at any time suppose V is the input, then output is AV. When output is A into V and beta is the fraction of the output which is fed back into input, it means the total feedback which is given as input is beta times A into V, as AV is the output and beta is the fraction. It means beta into A into V will be the input, and if beta into A into V is the input, it means we have taken that V is the input at any time. It means this beta times A into V, it must be equal to V, and if we cancel this V on both sides, then we get A beta is equal to 1. And in the last unit also we have done this, that whenever A beta is equal to 1, this condition is named as Barkhausen condition for sustained oscillations. तो बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हमने लास्ट यूनिट में किया था कि whenever A beta is equal to 1, so we get a positive feedback and the oscillations will be sustained oscillations, and this condition is was named as Barkhausen condition. And when A beta is equal to 1, we know in case of positive feedback the closed loop gain or voltage gain is equal to A over 1 minus A beta. When A beta is equal to 1, it means AV becomes infinity, and if voltage gain is infinity, what does it mean? It means we are getting output without any input, and in actual practice no input signal is needed to start the oscillations. हमें किसी को इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है. हमें ऐसा नहीं है कि कोई पहले हम सिग्नल देंगे, वो फिर एम्पलीफाई होगा और फिर बाद में ऑसिलेटर उसका फीडबैक आएगा. हम क्या करते हैं, जो नॉइज सिग्नल्स होते हैं विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सर्किट, तो नॉइज सिग्नल हैं, हम उनको एम्पलीफाई करवाते हैं. तो वट एवर द नॉइज सिग्नल प्रेजेंट in the circuit and we have the gain or beta A, we made it greater than 1, and the oscillations are set up by amplifying the noise voltage which is always present. But one thing we have to keep in mind, that average value of beta A is kept to be 1. It means पहले हम एक बार
जो बीटा ए है उसको 1 से ज्यादा रखेंगे ताकि जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होता चला जाए, और एम्पलीफाई होता होता जब वो एक रिक्वायर्ड सैचुरेशन सिग्नल पे पहुंच जाएगा उसके बाद हम एक एवरेज वैल्यू है उसको बीटा ए इक्वल टू 1 फिट कर देंगे और वो हमेशा उसी लेवल पे आके चलता रहेगा। जैसे इस वेव फॉर्म में हमने देखा ये छोटा था, हमने बीटा ए को ग्रेटर देन 1 रखा, ये सपोज कोई नॉइज सिग्नल था इस एम्पलीट्यूड का, तो ये बढ़ता बढ़ता अल्टीमेटली बढ़ता चला गया, और उसके बाद हमने क्या किया, बीटा ए को 1 पुट कर दिया, और बीटा ए को 1 पुट करने के बाद उसके बाद ये जो सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बिकम कांस्टेंट एंड वी विल गेट ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आउटपुट फ्रॉम द नॉइज सिग्नल। And when we are getting constant amplitude output, it means we are getting the oscillations which are sustained oscillations and undamped oscillations. So we can say an infinitesimal noise signal can provide a measurable AC output voltage, and the circuit it acts as an oscillator. So this is Barkhausen condition or Barkhausen criteria for sustained oscillations, or we can also say that it is a positive feedback which is present always in case of oscillators. If we move to our next topic, the next topic is tuned collector common emitter oscillator in your syllabus. In actual practice, what does it mean? Tuned collector जहां पे भी हमारे पास जो ट्यून्ड सिग्नल प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं टैंक सर्किट, जिस भी ट्रांजिस्टर के टर्मिनल पे टैंक सर्किट अवेलेबल होगा वही ट्यून्ड सर्किट होगा। If it is present in collector circuit, it will be a collector tuned circuit. If it is present in base part, it will be a tuned base circuit. If it is in emitter part, it will be tuned emitter circuit. Second is common emitter. Common emitter, whatever the configuration you use in transistors, if it is common base, it will be a common base tuned circuit. If it is common emitter, it will be a common emitter tuned oscillator. If it is common collector, it will be a common collector tuned oscillator. सिंपल। तो आपके जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, और वो जो एक कौन सा है कि जो टैंक सर्किट होगा दैट इज प्रेजेंट इन कलेक्टर, और जो हम ट्रांजिस्टर यूज करेंगे दैट विल बी इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इट मींस देयर इज ओनली वन टॉपिक फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स दैट इज ट्यून्ड कलेक्टर कॉमन एमिटर oscillator। As we can see from here, this is tank circuit. This part is tank circuit, and we know this tank circuit is available in collector terminal, so it will be a tuned collector. अब क्या होगा the windings of secondary L1 are connected to base. ये टैंक सर्किट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये L1 है, ये हमारा बेस के साथ प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम हमारे इस सर्किट के अंदर जैसे ही कलेक्टर करंट चेंज करेगा तो L जो पार्ट होगा, L से क्या होगा, सिग्नल इंड्यूस होगा, N से सिग्नल इंड्यूस होगा, वो L1 में इंड्यूस हो जाएगा, तो L से इंड्यूस होके L1 में, तो जैसे जैसे कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ने से क्या होगा कि L1 के अंदर भी जो इंडक्शन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे L1 के अंदर इंडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हमारे पास जो बेस एमिटर जंक्शन है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेस एमिटर पोटेंशियल पे अगर पोटेंशियल बढ़ता है, इट इज फॉरवर्ड बाइस, अगर इस पे पोटेंशियल बढ़ता है इसका मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ रही है। व्हेनेवर फॉरवर्ड बाइसिंग इज इंक्रीजिंग इट मींस एमिटर करंट इज इंक्रीजिंग, एंड व्हेनेवर एमिटर करंट इज इंक्रीजिंग कलेक्टर करंट इज इंक्रीजिंग। तो जो कलेक्टर करंट बढ़ेगा वो इंटर्न यहां से इंडक्शन को बढ़ाएगा, और जो ये इंडक्शन है ये अल्टीमेटली एमिटर करंट को बढ़ाएगी, और जो एमिटर करंट है वो फिर से दोबारा कलेक्टर करंट को बढ़ाएगा। तो इस तरह से जो कलेक्टर करंट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है, और जो कैपेसिटर है हमारा, जो ये सी कैपेसिटर है, ये चार्ज होता रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि जो आईसी है हमारा, जो कलेक्टर करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू को रीच नहीं कर जाता। जैसे ही ये मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा तो क्या है, इसकी जो चार्जिंग है वो कंप्लीट होगी। तो जैसे ही इसकी चार्जिंग कंप्लीट होगी तो इसके अंदर से क्या है, इंडक्शन हमारा स्टॉप हो जाएगा। जैसे इसके अंदर से इंडक्शन स्टॉप होगा इसका मतलब क्या है कि जो बाइसिंग है वो कम होनी शुरू होगी। बाइसिंग कम होनी शुरू होगी, एमीटर करंट कम होना शुरू हो गया। जैसे जैसे एमीटर करंट कम होना शुरू हो गया
कलेक्टर करंट कम होना शुरू हो गया। कलेक्टर करंट कम होना शुरू हो गया, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू होगी। तो डिस्चार्जिंग शुरू होगी, ये जो डिस्चार्जिंग है ये जो कैपेसिटर जो कलेक्टर करंट है इसको और डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगी। L1 में इंडक्शन और डिक्रीज होगा या अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जब ये डिक्रीज होगा एमीटर करंट और डिक्रीज करेगा, ये और डिक्रीज करेगा, आईसी और डिक्रीज करेगा। और ये प्रोसेस हमारा रिडक्शन का कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि हमारा जो आईसी है वो जीरो को अप्रोच नहीं कर जाता। जैसे ही ये जीरो को अप्रोच करेगा, जैसे ही इसने जीरो को अप्रोच किया, वैसे वैसे फिर क्या है, L1 से के थ्रू ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब L1 के थ्रू बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या है अगर हम यहां से पढ़ें, द एमीटर करंट टिल कलेक्टर करंट बिकम्स जीरो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू L1 इज अगेन जीरो, एंड व्हेन थ्रो L1 इज जीरो द एमीटर करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये मैंने तुम्हें बता दिया है। जब ये डिक्रीज करेगा एट दिस स्टेज द एमीटर बेस्ड सर्किट इज अगेन फॉरवर्ड बायस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन इट एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। एक बार हमारे पास क्या है, ये सारा जो प्रोसेस है ये कलेक्टर करंट को बढ़ाएगा, फिर जो सारा प्रोसेस है वो कलेक्टर करंट को, मतलब जो आईसी है वो एक बार मैक्सिमम को रीच करेगा, फिर वो मिनिमम को रीच करेगा, फिर वो मैक्सिमम को रीच करेगा, फिर वो मिनिमम को रीच करेगा। और अल्टीमेटली क्या है कि जो इंडक्टर हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, जो L2 वाइंडिंग है वो इस चेंज को यहां से वो आउटपुट के अंदर ले जाएगी, और L2 के अंदर जो वेरिएशन आएगा वो हमें एज आउटपुट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम L को बढ़ा रहे हैं, L1 बढ़ रहा है, L1 उसको फिर से सपोर्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट करने से हमारा कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है, तो हाउ द बायसिंग इज ए पॉजिटिव, हाउ द फीडबैक इज पॉजिटिव फीडबैक, वो कैसे पता लगेगा? वी नो कि जो कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर के अंदर हमेशा ही जो आउटपुट और इनपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री जो फेज डिफरेंस है वो हमारा आउटपुट और इनपुट के बीच में यहां से आएगा। बाकी जो ये L है, जब ये करंट L1 में इंड्यूस करेगा तो इस ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण, इस ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण L में और L1 में जो करंट इंड्यूस होगा उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज अगेन 180 डिग्री। अब 180 डिग्री तो हमारा बेस करंट और कलेक्टर करंट में वैसे ही है कॉमन एमीटर टर्मिनल के कारण, और 180 डिग्री आ गया L और L1 के इंडक्शन के कारण। तो टोटल फेज डिफरेंस बिकम्स 180 plus 180 that becomes 360, and 360 means 0, and whenever zero phase difference is there it means जो भी सिग्नल हमारा फीडबैक होगा, आउटपुट से इनपुट पे फीडबैक होगा, वो सारे का सारा सेम फेज में होगा। और जब भी हमने किया था ये कि आउटपुट से जो सिग्नल आगे इनपुट के साथ सेम फेज में फीडबैक होता है, तो जो फीडबैक होता है दैट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव फीडबैक। इट मीन्स the transistor amplifier provides sufficient gain for oscillator action to take place and the feedback is a positive feedback. In actual practice, ये तो था हमने बिल्कुल एक सिंपल सर्किट आपको दिखाया, इसके अंदर कोई भी बाइसिंग हमने अप्लाई नहीं की हुई। अगर हम बाइसिंग अप्लाई करके चलते हैं तो जैसे सेकेंड यूनिट के अंदर हमने किया था कि जो हमें R1 और R2 पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग हमने यूज की थी, तो R1 और R2 हम यूज करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर के लिए। दो कैपेसिटर जो ये CE और C डैश, ये दो कैपेसिटर क्या हैं, दोनों के दोनों कैपेसिटर हमारे बाईपास कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ये तो बाईपास कैपेसिटर का जो रोल है ये आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये किस लिए है? ये जो C डैश है इसका क्या काम है? एक्चुअली C डैश अगर हम नहीं अप्लाई करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम अगर C डैश अप्लाई नहीं करेंगे तो जब कलेक्टर करंट के चेंज होने के कारण से बेस के अंदर इंडक्शन होगी, तो जब बेस के अंदर इंडक्शन हुई हमने कहा था कि इसकी फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज करती है। अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग हम C डैश नहीं लगाएंगे तो जितनी फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज करेगी उसके कोरस्पोंडिंग क्योंकि जो करंट है वो R2 से फ्लो करेगा और जो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो R2 के थ्रू हो जाएगा, और जब हमारा इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो जो बाइसिंग हमारी बेस और एमीटर के बीच में होनी चाहिए वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, और इसके बीच में जो बाइसिंग है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो उस करंट का कि बेस हमारा एमीटर के कोरस्पोंडिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस रहे
वो अगर R2 के थ्रू ना हो तो करंट क्या होगा, क्योंकि सारे का सारा AC है, इंडक्शन के थ्रू आया है, तो वो जो करंट है वो हमारा C डैश के थ्रू बाईपास हो जाएगा। जब C डैश के थ्रू बाईपास हो जाएगा तो जो भी करंट इसके अंदर इंड्यूस होगा वो सारे का सारा जो पोटेंशियल चेंज आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो एमीटर और बेस के बीच में अपीयर होगा डायरेक्टली। और जो हमारा बेस और एमीटर के बीच में डायरेक्टली अपीयर होगा, इसका मतलब वो इसके फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करेगा। जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करेगा तो उससे एमीटर करंट इंक्रीज करेगा, एमीटर करंट इंक्रीज करेगा तो फर्दर कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा। और सिमिलरली जब उससे अपोजिट साइकिल के अंदर होगा तो जब करंट उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा कि जो इसकी बाइसिंग कम होगी, इसकी बाइसिंग कम होगी तो वो यहीं पे अपीयर होगी, यहीं पे अपीयर होगी तो उसके कोरोस्पोंडिंग एमीटर करंट डिक्रीज करेगा, एमीटर करंट डिक्रीज करेगा, उसके कोरोस्पोंडिंग कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो बाइसिंग है, अगर हम C डैश यूज नहीं करेंगे तो बाइसिंग है जो R2 है, R2 उस बाइसिंग को स्टॉप कर देगा। जो फॉरवर्ड बाइसिंग हमें, जो फीडबैक हमें मिलना है इन दोनों के बीच में, वो फीडबैक हमें R2 के कारण नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम C डैश को बाईपास कैपेसिटर यूज करते हैं। नाउ इट में बी नोटेड दैट आउटपुट ऑफ द ऑसिलेटर इज ड्रान थ्रू द इंडक्टर कॉइल L2। हम L2 से लेते हैं, ठीक है। L2 से अब ये क्या है, क्योंकि इसके अंदर पूरे के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो अगर ये थोड़े केस के अंदर भी इसके थ्रू हम ले पाए या इसके थ्रू भी हम ले पाए तो हमारा जो आउटपुट है वो इसके अगेंस्ट अगेन ट्रांसफॉर्मर एक्शन होगा, अगेन इंडक्शन होगा, और हम इस कपलिंग को बोलते हैं इंडक्टर कपलिंग। तो आउटपुट इज जनरली ड्रान यूजिंग इंडक्टिव कपलिंग बिटवीन द इंडक्टर कॉइल L ऑफ द टैंक सर्किट। द आउटपुट कैन बी ड्रान इवन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इंडक्टर कॉइल L। मैंने बताया ना कि ये छोटा सा पार्ट है, इससे भी हम ले सकते हैं। एज ऑसिलेशंस आर प्रेजेंट थ्रू आउट इट, ऑसिलेशन जो भी चेंज होगा वो हमारा थ्रू आउट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर थोड़े से पार्ट में से भी हम आउटपुट ले लेंगे तो भी हमें ऑसिलेशंस मिलेंगे। द आउटपुट कैन फर्दर बी कनेक्टेड आइदर टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, या तो हम इसको आगे अगली स्टेज को यूज कर लें, मतलब डबल स्टेज अगर हमें यूज करना है, या हम आगे कोई भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, मतलब जहां पे भी हमें ऑसिलेशंस की जरूरत है, हम इसके आगे वो लगा सकते हैं। इवन हम इस आउटपुट को रेडिएशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इस एक्शन को डायरेक्टली कहीं एंटीना को ऊपर डाल दें तो हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या जो ऑसिलेशंस हैं वो डायरेक्टली हमारी एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट भी हो सकते हैं। तो through this L2 we take output. This is tuned collector common emitter oscillator. It is the basic oscillator. इसके अंदर कोई स्पेशल टाइप नहीं है, हमने सिर्फ यही किया है इसके अंदर कि जो टैंक सर्किट है दैट इज प्रेजेंट इन कलेक्टर टर्मिनल, जो ट्रांजिस्टर है दैट इज इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सारे का सारा एक्शन वही है जो हमारा ट्रांजिस्टर के लिए होता है, जो एम्पलीफायर के लिए होता है। सिर्फ चेंज क्या आया है कि ये L और L1 लगाने से हमने क्या किया, जो फीडबैक है फीडबैक जनरेट किया कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है उसके कोरस्पोंडिंग इनपुट भी चेंज होएगा। और जब हमारा इनपुट भी चेंज होएगा हमने देखा कि दोनों के दोनों हमारे सेम फेज में है, इसका मतलब जो फीडबैक है दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। और जो हमारी ऑसिलेटर्स बनाने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि जो फीडबैक है इट मस्ट बी पॉजिटिव फीडबैक, और डिजाइन ऐसे करना है कि जो ए बीटा है दैट बिकम्स 1 सो दैट जो ऑसिलेशंस रहें वो हमारी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से फोन पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू।